Good afternoon students, welcome to today's video lecture. Today we will be starting new chapter 7 which is permutations and combinations. Permutations and combinations. Easy chapter है, ज़्यादा थियरी नहीं है, एक कंसेप्ट और फिर एक एक्सरसाइज है. ओके, तो एक्सरसाइज 7.1 करें उसके पहले मैं आपको 2-3 पॉइंट सिखा देता हूँ. पहला थियरी है जो आपको आनी चाहिए वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फॉर एडिशन. ठीक है, अब ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फॉर एडिशन क्या है उसके लिए पहले मैं आपको एक सम समझाता हूं. इन अ क्लास देयर आर 2 boys and 3 girls. A teacher, suppose sum है there are in a class there are 2 boys and 3 girls. Okay, और उसमें a teacher wants to send one student for a debate competition. In how many ways can this be done? In how many ways can this be done? Okay, अब जो स्टूडेंट है क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 5 स्टूडेंट्स. तो 5 स्टूडेंट्स लिख लो. 5 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू हमारे पास 2 बॉयज प्लस 3 गर्ल्स है. सपोज वो 2 बॉयज जो है लेट B1 B2 वो 2 boys let B1 B2 be 2 boys and G1 G2 G3 be 3 girls. Okay, be 3 girls. अब वो जो स्टूडेंट है टीचर को 1 स्टूडेंट को भेजना है फॉर डिबेट कॉम्पिटिशन. तो वो स्टूडेंट कौन हो सकता है? या तो वो लड़का हो सकता है या तो लड़की. अब अगर वो लड़के को भेजना है तो फर्स्ट बॉय B1 या सेकंड बॉय B2 को भेज सकते हैं. तो बॉयज को भेजने के तरीके कितने? तो अगर लड़की को भेजना है तो वो लड़की कौन सी हो सकती है? एनीवन आउट ऑफ G1 G2 और G3. तो स्टूडेंट उसके बाद लिखो स्टूडेंट one student has to be sent for debate. The student can be boy or girl. The student can be boy or girl. Okay, so therefore number of ways. A teacher can send 1 boy out of B1 or B2 in 2 ways, and teacher can send 1 girl out of G1 G2 G3 in 3 ways. So total number of ways to send 1 girl. So total number of ways to send 1 student is equal to number of ways of sending 1 boy plus number of ways of sending 1 girl. Yes or no? So total number of ways to send. So number of ways to send 1 student for debate. So therefore number of ways. Therefore total number of ways to send 1 student for debate will be equal to number of ways to send 1 boy plus because selected student can be boy or a girl, इसलिए प्लस किया मैंने, plus number of ways to send 1 girl. तो वो कितना है? Number of ways to send 1 boy 2. Number of ways to send 1 girl is 3. So answer is 5. So this work can be done in 5 ways. तो इसको बोलते हैं, ये जो मैंने एडिशन किया उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फॉर एडिशन। मतलब यहाँ पे मेरा वर्क क्या था, यहाँ पे मेरा वर्क था टू सेट वन स्टूडेंट, और वो पूरा वर्क
can be done in two ways. The student can be a boy or a girl. So number of ways to send one boy is 2 ways. Number of ways to send one girl is 3 ways. So total number of ways to do the whole work of sending one student is equal to 2 plus 3, which is equal to 5. So fundamental principle of counting, fundamental principle of counting for addition को हम कैसे लिखेंगे? Suppose a work has to be done. Suppose a work has to be done. Suppose the work can be. Suppose work can be done in m ways or n ways. मतलब पूरा वर्क करने के तरीके या तो m है या तो n है. Then total number of days, total number of ways to do the work is n plus n. और आया इसके प्लस किया. That's why fundamental principle of counting for addition. This is fundamental principle of counting. This is fundamental principle of counting. मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को FPC बोलते हैं फॉर एडिशन. ठीक है, ये हो गया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फॉर एडिशन. दूसरा भी FPC होता है. दिस इज नॉट गिवन इन द टेक्स्ट बुक, जो मैंने अभी आपको बोला. टेक्स्ट बुक में लिया है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फॉर मल्टीप्लिकेशन. तो अब मैं वो सिखा रहा हूं फंडामेंटल. नेक्स्ट हेडिंग ये आपको समझ में आ गया. अभी दूसरा समझाऊंगा तो इसका भी आपको फर्क समझ में आ जाएगा. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फॉर मल्टीप्लिकेशन. ओके, तो इसके लिए भी मैं एक एग्जांपल दूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा. There are 2 boys and 3 girls here. There are 2 boys and 3 girls in a class. A team of 1 boy and 1 girl has to be sent for debate. In how many ways? In how many ways can this be done? Okay. think. यहाँ पे हमको एक स्टूडेंट को नहीं भेजना है. यहाँ पे हमको टीम ऑफ 2 स्टूडेंट जिसमें 1 बॉय एंड 1 गर्ल है ऐसा भेजना है. तो मेरा वर्क क्या है यहाँ पे मेरा वर्क है अ टीम ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल. और वो जो मेरा वर्क है इज डिवाइडेड इनटू एक बॉय को सिलेक्ट करना है हमको एंड एक गर्ल को सिलेक्ट करना है. ओके, तो ये मैं आपको समझाता हूं. 5 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास. 5 स्टूडेंट्स, 2 बॉयज प्लस 3 गर्ल्स. ओके, सपोज B1 B2 are suppose B1 B2 let 2 boys be. सपोज हम डिनोट करते हैं लेट 2 बॉयज बी. B1 B2 लेट 3 गर्ल्स बी. G1 G2 G3. ठीक है. ओके, नाउ a team of 1 boy and 1 girl has to be sent for debate. तो मैं सारी पॉसिबल टीम्स बता देता हूं. पॉसिबल टीम्स फॉर डिबेट. कौन कौन सी होंगी? पॉसिबल टीम्स फॉर द डिबेट कौन कौन सी होंगी? फर्स्ट बॉय एंड फर्स्ट गर्ल B1 G1. फर्स्ट बॉय एंड सेकंड गर्ल B1 G2. फर्स्ट बॉय एंड थर्ड गर्ल B1 G2. सेम वे सेकंड बॉय फर्स्ट गर्ल B2 G1 B2 G2 B2 G3. कितनी टीम्स पॉसिबल है?
possible teams for the debate 1 2 3 4 5 6. So total number of ways, so total number of ways to send the team, total number of ways to send, मतलब मैं पहले आंसर निकाल दिया मैंने कि टोटल नंबर ऑफ वेज, therefore total number of ways, total number of ways to send the team कितने हैं? टोटल 6. ये रिजल्ट नंबर 1 यहाँ, ठीक है. तो टोटल आंसर 6 है. अब ये एक्चुअल वर्क क्या है? A team of one boy and one girl has to be sent. So now here in team here total number of ways to send the team is 6. ये आंसर में आ गया. पर अब देखो इसको मैं कैसे करता हूं. Here a team of one boy and one girl has to be sent. Yes or no? Has to be sent. तो यहाँ पे मेरा वर्क क्या है? मेरा ओरिजिनल वर्क क्या है? टू फॉर्म अ टीम. टीम कब बनेगी? जब मैं वन बॉय को सिलेक्ट करूं एंड वन गर्ल को सिलेक्ट करूं. सो वन गर्ल कैन बी सिलेक्टेड और वन बॉय can be selected. One boy can be selected from two boys. B1, B2 in two ways. Or I will write number of ways. मैं सीधा लिख देता हूँ. Number of ways. Therefore, मतलब मेरा वर्क क्या है? एक टीम फॉर्म करना. टीम ऑफ वन बॉय वन गर्ल. टीम पूरी कब बनेगी? जब मैं वन बॉय को सिलेक्ट कर लूं और वन गर्ल को सिलेक्ट कर लूं. पहले नंबर ऑफ ways to select one boy from B1 B2. From B1 B2 कितना होगा? 2. मतलब एक बॉय को सिलेक्ट करना है तो वो कौन हो सकता है? या तो B1 या तो B2. फिर मैं एक गर्ल को सिलेक्ट करता हूं. नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट वन गर्ल फ्रॉम, तो 3 गर्ल्स कौन सी थी? G1, G2, G3. तो कोई भी एक गर्ल को मैं सिलेक्ट कर सकता हूं टीम में, या तो G1 या तो G2 या तो G3. वो 3 हो. Am I clear? तो आप जरा समझो यहाँ पे मेरा वर्क क्या है? A team of one boy and one girl has to be sent. तो पहले मैंने उस वर्क को, पूरे वर्क को 2 पार्ट में डिवाइड किया. Selecting a boy, selecting a girl. Number of ways to select one boy 2 आया. Number of ways of selecting one girl 3 आया. अब मेरा total number of ways to send the team कितना है? 6. Total number of ways to by 1 हमारे पास total number of ways to send टीम कितना था? आंसर वो था 6. Can I write that as 2 into 3? Can I write that as 2 into 3? And what is 2 actually? That is equal to number of ways to select one boy into, can I say number of ways to select one girl. आप समझे मैंने क्या किया? बाय 1 से मतलब मुझे पहले से आंसर पता है. टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेंड अ टीम क्या है? 6. मतलब टोटल 6 टीम्स भेज सकते हैं. अब यहाँ पे मेरा वर्क था टू सेंड अ टीम. सिलेक्टिंग अ टीम या टेकिंग अ टीम को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया. सिलेक्टिंग अ बॉय एंड सिलेक्टिंग अ गर्ल. एंड क्यों मैं बोल रहा हूँ? टीम कब बनेगी? जब वन बॉय सिलेक्टेड एंड वन गर्ल सिलेक्टेड. तो मैंने वन बॉय को सिलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज निकाले. नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट वन बॉय 2, B1 और B2 में से. नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट वन गर्ल फ्रॉम G1 B2 G3 3. टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेंड द टीम क्या है? 6. तो इसका कनेक्शन है ये रिजल्ट नंबर 2 और ये रिजल्ट नंबर 3 के साथ क्या है? कैन आई राइट 6? टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेंड द टीम इज 6. कैन आई राइट दैट एज 2 into 3? And what is 2 actually? Number of ways to send one boy. And what is 3? Number of ways to send one girl. So can I say number of ways? So total number of ways पूरा समझो. Total number of ways. Therefore आप इस पूरे सम को इंस्टेड ऑफ हम करें वो 6 अलग-अलग टीम बना के हम करें उससे अच्छा हम ऐसे भी कर सकते हैं. टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेंड अ टीम ऑफ वन बॉय एंड वन गर्ल फॉर डिबेट. अगर मैं इसको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को तो ओके
वर्क है एक टीम को सेंड करने का, और उस टीम में 1 बॉय एंड 1 गर्ल होना चाहिए, तो उसको मैं 2 सब टास्क में डिवाइड करता हूं। मैं करूंगा एक बॉय को सिलेक्ट करने का एक काम, और दूसरा एंड मेरा दूसरा काम है सिलेक्टिंग अ गर्ल। तो कहने से नंबर ऑफ वेज ऑफ सेंडिंग अ टीम विल बी इक्वल टू, मेरा एक काम क्या है, मेरा पहला काम क्या है, टू सिलेक्ट वन, सो नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट वन बॉय, मतलब मुझे पहले टीम फॉर्म करने के लिए एक बॉय को सिलेक्ट करना पड़ेगा, सो नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट वन बॉय निकालना पड़ेगा। फिर मुझे 1 गर्ल को भी सिलेक्ट करना है, तो मुझे नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 1 गर्ल भी करना पड़ेगा, टू सिलेक्ट 1 गर्ल। ओके, फ्रॉम B1 B2 लिखने की जरूरत नहीं, सो नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 1 बॉय, कितने बॉयज हैं, 2, B1 और B2, तो मैं B1 को भेज सकता हूं, मैं B2 को भेज सकता हूं, तो नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 1 टीम विल बी 2 इनटू नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 1 गर्ल, 3 गर्ल्स हैं, G1 G2 और G3, so number of ways to select 1 girl can be 3 because selected girl can be G1 or G2 or G3, so 2 into 3 तो आंसर कितना है 6, which matches, you can say result number 1. So this is known as fundamental principle of counting for multiplication. This is known as fundamental principle of counting for multiplication. इसको मैं अपने बोर्ड में ऐसे लिखता हूँ, suppose a work has to be done. Suppose a work has to be done. Suppose a work has to be done. The work is said to be complete. The work is said to be complete if 2 subtasks are done. मतलब वर्क कंप्लीट कब होगा, अगर 2 सब टास्क उसके अंदर हैं वो किए गए हैं। if 2 सब टास्क आर डन, सपोज फर्स्ट सब टास्क कैन बी डन in m ways, can be done in m ways, and second subtask can be done in n ways. Suppose first subtask can be done in n ways and second subtask can be done in n ways. मैंने क्या बोला, suppose a work has to be done, एक काम मुझे करना है, a work has to be done, then work is said to be complete if 2 subtasks are done, मतलब 2 सबटास्क करने पर ही वो वर्क पूरा कंप्लीट गिना जाएगा, और पहला फर्स्ट सबटास्क कैन बी डन इन n ways and second subtask can be done in n ways, then total number of ways of completing the job or doing the job, and total number of ways to therefore total number of ways से क्या मिलेगा, total number of ways to do work will be equal to, work तो कंप्लीट होगा जब पहला सब टास्क has been done and second सब टास्क has been done, so number of ways to do first सब टास्क, और वर्क कंप्लीट कब होगा जब फर्स्ट सब टास्क एंड सेकंड सब टास्क आ रहा है, और एंड आ रहा है इसलिए मल्टीप्लिकेशन करेंगे इनटू नंबर ऑफ वेज टू डू सेकंड सब टास्क, ओके, व्हिच इज इक्वल टू m into n, which is equal to m into n, which is equal to m into n, okay, so this is fundamental principle of counting, मतलब FPC for multiplication, ठीक है, याद रहेगा। टेक्स्ट बुक में उन्होंने अलग से एक अपने वर्ड्स में दिया है, आई हैव गिवन दिस इन माय ओन वे, इजी वे, just write FPC of multiplication given in the textbook, इतना ही नॉलेज आपको चाहिए for solving the first exercise, इतना ही आपको नॉलेज चाहिए
फॉर डूइंग द फर्स्ट एक्सरसाइज। टेक्स्ट बुक में क्या किया है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मतलब एफपीसी फॉर मल्टीप्लिकेशन या एडिशन, या उन्होंने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऐसा कुछ बोलते हैं, दे कॉल इट मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्या लिखा है उन्होंने? इफ गिवन if an event can occur in n different ways, following which another event can occur in n different ways, then total number of ways of occurrence of both the events, of first event and second events, of both events in the given order, मतलब पहला इवेंट फॉलोड बाय सेकंड इवेंट एंड बोथ द इवेंट्स होने चाहिए, मतलब फर्स्ट इवेंट भी अगर होना चाहिए एंड सेकंड इवेंट भी अगर होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अकरेंस ऑफ फर्स्ट इवेंट एंड सेकंड इवेंट इज गिवन बाय m क्रॉस n, is given by m cross n, m equal, ठीक है? Okay, so now this much is enough for you can say starting of exercise 7.1. Exercise 7.1 is not at all a very tough exercise. It is average questions and इसमें ज्यादा tough questions नहीं है। आप अगर आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई है तो आप एक्सरसाइज के साथ साथ इसके एग्जांपल से फिनिश कर सकते हो और आपको 3 या 4 बार करने की जरूरत नहीं है। आपको ये 2 बार इफेक्टिवली करोगे आ जाएगा। एक्सरसाइज 7.1। ओके, पहला क्वेश्चन है 3 डिजिट नंबर टू बी मेड। पहले सारे पॉइंट्स लिख देंगे जो क्वेश्चन में है। 3 डिजिट नंबर टू बी मेड, फिर कौन कौन से डिजिट्स हमको यूज कर रहे हैं? डिजिट्स टू बी यूज्ड है 1 2 3 4 5। Assuming that okay, 2 केसेस है, repetition allowed, no repetition allowed। okay, 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 3 डिजिट नंबर इज, पहली प्लेस को हम बोलेंगे 100 प्लेस, सेकंड प्लेस को बोलेंगे 10th प्लेस और लास्ट प्लेस ऑन द राइट को हम बोलेंगे यूनिट प्लेस। अब 3 डिजिट नंबर कब होगा? 3 डिजिट नंबर होने के लिए कभी भी 0 100 प्लेस पे नहीं होना चाहिए। अगर 100 प्लेस पे 0 आएगा, 100 प्लेस पे 0 आएगा, अगर यहाँ पे 0 आएगा तो ये 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो आपको याद रखने का नो 0 एट 100 प्लेस, ठीक है? कि यहाँ पे जो डिजिट्स टू बी यूज्ड है उसमें 0 नहीं है, पर अगर यहाँ पे 0 होता तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता। लेकिन अगर 0 आएगा 100 प्लेस पे तो ये 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो डिजिट्स टू बी यूज्ड में 0 हो या ना हो ये हमेशा हमको याद रखना। अभी फर्स्ट केस क्या है? रेपिटिशन अलाउड, मतलब सेम नंबर 100 प्लेस पे भी हो सकता है और 10th प्लेस पे भी हो सकता है, यूनिट प्लेस पे भी हो सकता है। सो 100 प्लेस, 10th प्लेस और यहाँ पे यूनिट प्लेस है। ओके, सो यहाँ पे कौन सा नंबर हो सकता है? यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 कोई भी हो सकता है। 100 प्लेस पे 0 तो है ही नहीं, डिजिट्स टू बी यूज्ड में 1 2 3 4 5, तो 100 प्लेस पे कोई भी डिजिट हो सकता है 1 2 3 4 और 5। सो दिस प्लेस 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 ways। आप आई होप आप समझ गए। 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 ways by which number? 1 2 3 4 और 5।
सिमिलरली रेपिटेशन अलाउड है, सो 10th प्लेस पे भी जो नंबर यहाँ पे है यहाँ पे भी आ सकता है, तो दिस प्लेस कैन आल्सो बी फिल्ड इन 5 ways from 1 2 3 4 or 5, or unit place can also be filled in 5 ways. Unit place can also be filled in 5 ways. Why? Repetition is allowed. यहाँ पे कुछ भी आ सकता है 1 2 3 4 और 5. I hope I am clear. I hope I am clear. So therefore, total number of 3-digit numbers form. So total numbers form. Total numbers form. अब नंबर का फॉर्म होगा, 3-digit नंबर का फॉर्म होगा विद रेपिटेशन जब 100 प्लेस फिल्ड एंड 110 प्लेस फिल्ड एंड यूनिट प्लेस फिल्ड. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग 100 प्लेस इनटू नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग 10 प्लेस इनटू नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग यूनिट प्लेस करना पड़ेगा. मुझे मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि number will be formed, 3-digit number will be formed, 3-digit number will be formed when 100 place is filled and 10 place is filled and unit place is filled. मतलब number of ways of filling 100 place, number of ways of filling 10 place और number of ways of filling unit place को multiply करेंगे तभी total numbers form, total number of 3-digit numbers formed with repetition वाले मिल जाएंगे. So number of ways of filling 100 place कितना है 5. number of ways of filling 10th place कितना है 5. number of ways of filling unit place कितना है 5 by FPC. ऐसा लिख देंगे. तो आंसर क्या है 5 5 25 125. सिंपल. ये हो गया रेपिटेशन अलाउड के साथ. अब सेकंड में उन्होंने लिखा है repetition of digits is not allowed. repetition of digits is not allowed. repetition of digits is not allowed. repetition is not allowed. Okay, so repetition is not allowed. 100 place, 10th place, unit place. See, filling of digits we can start from 100, 10 and unit or unit 10 and 100. मैं हमेशा unit से start करता हूँ और वो किसी भी order में हो सकता है. That is not a big issue. Now repetition of digits is not allowed. कौन कौन से digits यूज करते हैं 1 2 3 4 और 5. उसमें 0 तो है ही. So 100 place can be filled in 5 ways. 100 place can be filled in 5 ways. अब suppose यहाँ पे 1 आ गया, suppose यहाँ पे 2 आ गया, तो यहाँ पे 2 नहीं आ सकता. तो यहाँ पे 1 3 4 और 5 में से ही आ गया, कोई भी एक नंबर आ सकता है. तो यहाँ पे जो डिजिट आया है उसका यूज यहाँ पे हम नहीं कर सकते. क्यों? Repetition is not allowed. So 100 place can be filled in 5 ways. यहाँ पे एक डिजिट आ चुका है, that's why this place can be filled in 4 ways. ठीक है. अब यहाँ पे एक डिजिट आ चुका है और यहाँ पे एक डिजिट आ चुका है. सपोज यहाँ पे 2 आ चुका है और यहाँ पे 3 आ चुका है. तो दो डिजिट्स यूज हो चुके हैं. 1 2 3 4 और 5 में से 2 और 3 यूज हो चुके हैं और रेपिटेशन इज नॉट अलाउड. तो उसका मतलब यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 आ चुका है, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 2 और 3 नहीं आ सकता. उसके लिए मतलब यूनिट प्लेस के लिए खाली 3 डिजिट्स अवेलेबल है 1 4 और 5. ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया. सो उसका मतलब यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज 3 ways. ओके, सिंपल. सो देयरफॉर टोटल नंबर्स फॉर्म, मैं पूरा डिटेल में लिख रहा हूं. टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म विदाउट रेपिटेशन. तो टोटल नंबर्स फॉर्म, नंबर का फॉर्म होगा जब 100 प्लेसेस फिल्ड एंड 10 प्लेसेस फिल्ड एंड यूनिट प्लेसेस फिल्ड. सो टोटल नंबर्स फॉर्म के लिए क्या करेगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग 100 प्लेस कितना है 5 इनटू नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग 10 प्लेस 4 into number of ways of filling unit place which is 3 because by FPC कितना आंसर है 5 4 20 23 60. Let's take the answer back. Exercise 7.1. Exercise 7.1. Just wait. Okay, तो पहले का आंसर है 125, दूसरे का आंसर है 65. Now coming to the second question. Coming to the second question. आप देखो ये जो एक्सरसाइज है वो एक लॉजिक पे ही बेस्ड है. एकदम सिंपल पॉइंट. हो सकता है मैंने अभी जो समझाया आपको समझ में नहीं आया, थोड़ा समझ में आया, नहीं आया. जस्ट गिव मी 2 और 3 क्वेश्चन. सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करूंगा
आपको सारा लॉजिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, इजी है, टफ नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट इवन नंबर टू बी फॉर्म, 3 डिजिट इवन नंबर टू बी फॉर्म। कौन से डिजिट्स यूज कर रहे हैं? डिजिट्स टू बी यूज्ड, डिजिट्स टू बी यूज्ड कौन कौन से हैं? उन्होंने रेस्ट्रिक्शन दिया है 1 2 3 4 5 6। ओके, अब वो 3 डिजिट नंबर क्या है? 3 डिजिट नंबर मतलब इवन नंबर तो ठीक है, पर 3 डिजिट नंबर का पैटर्न क्या होता है? 100 प्लेस, 10th प्लेस और यूनिट प्लेस। फिर क्या याद रखने का? नो जीरो एट 100 प्लेस, नो जीरो एट 100 प्लेस। और हाँ, एक मिनट 3 डिजिट नंबर रेपिटेशन इज अलाउड, लिखना रह गया, ठीक है, वो बाद में लिखता हूं। नो जीरो एट 100 प्लेस होना चाहिए। ओके, अब मुझे इवन नंबर फॉर्म करना है। इवन नंबर कब होता है? जब यूनिट प्लेस में क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 और 8। A number is even, a number is even if it has 0 2 4 6 8, if it has any of 0 2 4 6 or 8 and units place। ओके, और हमारे सम में repetition is allowed or not allowed? क्वेश्चन देखो, digits can be repeated, so repetition allowed, repetition allowed। तो सबसे पहले हमारे पास 3 डिजिट इवन नंबर फॉर्म करना है, तो पहले यहाँ पे मैं 100 प्लेस लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मैं 10 प्लेस लिखा मैंने, और यहाँ पे मैंने यूनिट्स प्लेस लिखा। अब इवन हमको इवन नंबर फॉर्म करना है, और हमारे पास डिजिट्स टू बी यूज्ड में 1 2 3 4 5 6 है। तो यूनिट प्लेस के लिए मैंने क्या बोला? इवन नंबर कब होता है? जब यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 और 8 कोई भी एक होना चाहिए। तो यूनिट प्लेस पे आई कैन फिल डिजिट्स टू बी यूज्ड में से 2 और 4 और 6। सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड, यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। ठीक है, यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। और दूसरा रेपिटेशन अलाउड है, और डिजिट्स टू बी यूज्ड 1 2 3 4 5 6 है, और उसमें 0 नहीं है, इसलिए 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन, कैन आई से 6 वेज? 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन, 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6 ways, and similarly 10 place can also be filled in 6 ways। यहाँ पे कोई भी एक नंबर आ सकता है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी कोई भी नंबर आ सकता है 1 2 3 4 5 6। so therefore total 3 digit even numbers में, so total 3 digit even numbers form कितने होंगे? ये नंबर कब बनेगा? जब 100 place filled and 10th place filled and unit place filled। so number of ways of filling 100 place कितना है? 6। number of ways of filling 10 place कितना है? 6। और number of ways of filling unit place कितना है? 2 4 और 6 से हमको fill करना है 3 ways। तो अल्टीमेटली इन तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा 6 6 36 36 3 108। और यहाँ पे क्या लिखने का? बिकॉज बाय FEC हो गया। total 3 digit even numbers form with repetition, या सीधा लिखेगा total numbers form is equal to number of ways of filling 100 place, number of ways of filling 100 place। नंबर कब बनेगा? 100 place filled and 10 place filled and 80 place filled। तो उसका मतलब हमको number of ways of filling 100 place, number of ways of filling 10 place, number of ways of filling unit place, तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। so total number of 3 digit numbers form मिल जाएगा। आंसर आ गया कितना? 6 into 6 into 3, 6 is 36, 33 is 108। check, 36 is 108, right there। okay, now question number 3, question number 3, how many 4 letter code can be formed? okay, 4 letter code to be formed, 4 letter code to be made, 4 letter code to be made using the first 10 letters of English alphabets। alphabets to be used, alphabets to be used कौन से हैं? alphabets to be, alphabets to be used कौन कौन से हैं?
पहले 10 करेंगे, छोटा एबीसीडी में A B C D E F G H I J. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, no letter must be repeated. No letter repeated मतलब no repetition allowed. Suppose 4 letter code के लिए फर्स्ट प्लेस है यहाँ पे, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस. 4 letter code में 4 प्लेस हो और no repetition और total alphabets to be used 10 alphabets to be used. 10 alphabets to be used. कौन कौन से 10 alphabets to be used? कौन कौन से A B C D E F G H I. So since no repetition is allowed, first place कोई restriction भी नहीं है. यहाँ से ऐसे फिलिंग करो, यहाँ से फिलिंग करके आप फर्स्ट प्लेस के लिए फिल्ड इन कोई भी 10 अल्फाबेट में से कोई भी एक अल्फाबेट बन को 10 मिनट्स. So first place can be filled in 10 minutes. Second place can be filled in how many minutes? Second place, third place, fourth place. Second place can be filled in how many minutes? Repetition is not allowed. जो अल्फाबेट यहाँ पे आया वो यहाँ पे नहीं आ सकता. एक अल्फाबेट यूज हो चुका है तो अब सपोज A यूज हो चुका है तो बचे कितने? 9. तो सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9. समझ में आया? एक अल्फाबेट यहाँ पे आ चुका है, एक अल्फाबेट यहाँ पे आ चुका है. सपोज B आ चुका है तो जो अल्फाबेट फर्स्ट और सेकंड प्लेस में आ चुका है वो थर्ड पे नहीं आ सकता. तो थर्ड प्लेस के लिए कितने अल्फाबेट्स अवेलेबल हैं? 8. सो थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 8. ओके, अब फर्स्ट प्लेस फिल हो चुकी है, सेकंड प्लेस फिल हो चुकी है, थर्ड प्लेस फिल हो चुकी है. ओके, तो मतलब 3 अल्फाबेट्स यूज हो चुके हैं. 3 अल्फाबेट्स कोई भी 3 यूज हो चुके हैं और रेपिटेशन अलाउड नहीं है. तो फोर्थ प्लेस के लिए कितने अल्फाबेट्स अवेलेबल है? 7. तो उसका मतलब फोर्थ प्लेस कैन बी फिल्ड इन, फोर्थ प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? 7 वेज. तो अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मेनी 4 letter code can be formed? So total number of 4 letter code form, number of 4 letter code form. So therefore number of 4 letter codes form. हाँ, 4 letter code कब बनता है? जब फर्स्ट प्लेस filled and second place filled and third place filled and fourth place filled. So number of ways of filling first place को multiply करना पड़ेगा number of ways of filling second place into number of ways of filling third place into number of ways of filling fourth place. तो आंसर क्या आएगा? 10 into 9 into 8 into 7. This is equal to, again you write it because by F P C. 10 into 9 into 8. 10 into 9 into 8 into 7. आंसर आएगा 5040. 5040. ठीक है, इजी. 5040. इस नंबर का आंसर राइट है 5040. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4. अप्लाई करो 4th 5th और 6th टू ट्राई कि आपका आंसर में से पहले आना चाहिए. ओके, 5 digit telephone number can be constructed using the digits 0 to 9. 5 digit telephone number नहीं लिखना, 5 digit number to be made. Okay, digits to be used कौन कौन से? 0 to 9 digits to be used 0 to 9. टोटल 10 digits हमको यूज करने हैं. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 such that each number starts with 67. हाँ, each number starts with 67 and no digit appears more than once. उसका मतलब क्या? No repetition allowed. उसका मतलब no repetition allowed. तो यहाँ पे लिखो पहले no repetition और दूसरा each number starts with 67. ये डेटा दिया हुआ. अब वो 5 digit number, suppose 5 digit number is first place, second place, third place, fourth place और fifth place. अब फर्स्ट प्लेस जो है उस पे तो 6 आना चाहिए, सेकेंड प्लेस जो है उस पे 7 आना चाहिए. क्यों लिखा है? ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67. ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67. उसका मतलब फर्स्ट प्लेस पे 67, अरे फर्स्ट प्लेस पे 6, सेकंड प्लेस पे 7 ही आना चाहिए. अब
थर्ड प्लेस के बारे में मुझे पता नहीं, फोर्थ प्लेस के बारे में और फिफ्थ प्लेस के बारे में कुछ ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया है। सो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 6 in how many ways? One way. Second place can be filled by 7 in one way. Okay. अब थर्ड प्लेस और फोर्थ प्लेस बचा है। थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस और फिफ्थ प्लेस बची है। 0 to 9, यहाँ पे 6 आ चुका है, यहाँ पे 7 आ चुका है, तो दो डिजिट्स आ चुके हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 डिजिट्स में से 6 और 7 आ चुका है। तो थर्ड प्लेस के लिए कितने डिजिट्स अवेलेबल हैं? 8। कौन से? 0 1 2 3 4 5 8 और 9, उसमें से कोई भी थर्ड प्लेस में आ सकता है। सो दिस प्लेस कैन बी filled in how many ways? दो डिजिट्स यूज हो चुके हैं, रेपिटेशन अलाउड नहीं है, सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 8 ways. थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 8 ways. फोर्थ प्लेस और फिफ्थ प्लेस के बारे में आपका क्या ख्याल है? यहाँ पे 6 आ चुका है, यहाँ पे 7 आ चुका है, तो दो डिजिट्स का यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे भी एक डिजिट आ चुका है, सपोज 4 आ चुका है या 8 आ चुका है, यहाँ पे भी एक डिजिट आ चुका है, तो तीन डिजिट्स यूज हो चुके हैं 0 to 9 में से। एक भी डिजिट का रेपिटेशन अलाउड नहीं है, सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 10 में से 10 डिजिट्स में से तीन डिजिट यूज हो चुके हैं, सो फोर्थ प्लेस कैन बी फिल्ड इन 7 प्लेस। फिर यहाँ पे एक डिजिट, यहाँ पे एक डिजिट, यहाँ पे एक डिजिट, यहाँ पे एक डिजिट, चार डिजिट यूज हो चुके हैं, रेपिटेशन अलाउड नहीं है, टोटल डिजिट्स 10 है, तो 4 यूज हो चुके हैं, तो फिफ्थ प्लेस के लिए कितने बचे? 6। सो फिफ्थ प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6 ways. 10 digits to be used. ऐसा है, ऐसा लिखना। 10 digits to be used. 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना लंबा चौड़ा लिखना नहीं है। 10 digits to be used. तो उन्होंने पूछा कि 5 digit telephone numbers can be made. So therefore 5 digit. So total 5 digit telephone numbers made will be equal to number of ways of filling the first place, which is 1, into number of ways of filling the second place by 7, which is 1, number of ways of filling third place 8, into number of ways of filling fourth place, which is 7, into number of ways of filling the fifth place, which is 6, by FPC. तो आंसर क्या है? कितना आंसर आएगा? 8 into 7 into 6 into 1, 8 7 is 56, 1 into 1 into 8 into 7 into 6, 336. Final answer will be 336. See, these are all. Sometimes in many schools, अगर आप ऐसा सब्जेक्ट नहीं लिखते हो, तो these questions they come for 1 mark और maximum they can ask these for 2 marks. तो ये बहुत एवरेज क्वेश्चंस हैं, आपको 3 या 5 बार गिनने की जरूरत नहीं है। इफेक्टिवली 2 बार आप करो आज मेरे साथ, और घर पे फिर बाकी एक बार, मोर देन इनफ। लॉजिक समझ गया? एक्सरसाइज में कंप्लीट ऑफ क्वेश्चंस नहीं है। A coin is tossed 3 times and the outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? Okay. A coin is tossed 3 times. Okay. अब एक सिक्के को उछालते हैं तो आउटकम क्या हो सकता है? हेड या टेल. तो सपोज H denotes getting head and capital T denotes getting tail. समझ गए? Suppose H denotes getting head and capital T denotes getting tail. ठीक है, मतलब एक सिक्के को जब हम उछालते हैं एक बार तो आउटकम क्या हो सकता है? या तो हेड हो सकता है या तो टेल. हेड को मैं डिनोट करता हूं कैपिटल H से और टेल को डिनोट करता हूं मैं कैपिटल T से. अब यहाँ पे कॉइन को कितनी बार उछाला गया है? कॉइन को यहाँ पे 3 बार उछाला गया है. तो फर्स्ट टॉस, सेकेंड टॉस और थर्ड टॉस. ठीक है, तो फर्स्ट टॉस में आउटकम क्या हो सकता है? या तो हेड या टेल. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे? 2. सेकेंड बार अगर मैं सिक्के को उछालूं तो मुझे क्या मिल सकता है? हेड या टेल. तो कितने आउटकम्स? 2. थर्ड बार में सिक्के को उछालूं तो क्या आ सकता है? अगेन सेम लॉजिक, हेड या टेल. सो हाउ मेनी आउटकम्स? 2 आउटकम्स. सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, so total number of outcomes when a coin is tossed 3 times will be equal to, first toss के कितने आउटकम्स हैं? 2.
इनटू सेकंड टॉस से कितने आउटकम्स है 2 इनटू थर्ड टॉस से कितने आउटकम्स है 2, तो आंसर विल बी 2 into 2 into 2 which is equal to 8 by FPC by FPC. So total outcomes will be 8 और अगर ये 8 outcomes आपको लिखने हैं, अगर ये 8 outcomes आपको लिखने हैं तो वो कैसे लिखने हैं उसके लिए मैं आपको एक नोट देता हूं। मैंने क्या लिखा, the coin is tossed 3 times. सिक्के को उछालते हैं तो आउटकम हेड हो सकता है या टेल। कैपिटल H डिनोट्स गेटिंग हेड, कैपिटल T डिनोट्स गेटिंग टेल। फर्स्ट बार में सिक्के को उछालो तो हेड या टेल आ सकता है, सो 2 आउटकम। सेकंड बार में सिक्के को उछालो तो हेड या टेल आ सकता है, 2 आउटकम। थर्ड बार सिक्के को उछालो तो हेड या टेल आ सकता है, 2 आउटकम। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे when a coin is tossed 3 times? Number of outcomes in the first toss into number of outcomes in the second toss into number of outcomes in the third toss. 2 into 2 into 2 which is equal to 8. और वो 8 आउटकम्स अगर आपको चाहिए तो कैसे मिलेंगे? पहले टॉस में क्या हो सकता है, हेड या टेल। सेकंड टॉस में क्या हो सकता है, हेड या टेल। थर्ड टॉस में क्या हो सकता है, हेड या टेल। इसका क्रॉस प्रोडक्ट आपको लेना होगा। पहले दोनों का ले लो, HH HT TH TD, डोंट राइट एज ऑर्डर पेयर, आप ऐसे T लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब HH HT TH TT आ गया। अब ये HH और HT के साथ मतलब ट्रिपल H हो जाएगा, मतलब कितना आएगा फाइनल HH HH H फिर HH T फिर आएगा ओके लेफ्ट राइट एंड लास्ट HH H डबल HT फिर HTH फिर है HTT फिर है THH THH फिर है THT फिर है TTH और फिर है TT। इसका मतलब क्या, HHH का मतलब क्या, पहले टॉस में हेड, दूसरे टॉस में हेड, तीसरे टॉस में हेड। HHT का मतलब क्या, पहले और दूसरे में हेड और तीसरे में टेल। HTT में क्या, पहले में हेड बाकी दो में टेल। THT में क्या, पहले में टेल दूसरे में हेड तीसरे में टेल और ट्रिपल टी मतलब तीनों में टेल। ओके सो ये 8 आउटकम्स से पूछे उन्होंने, दे हैव नॉट आस्क्ड राइट द 8 आउटकम्स, हाउ मेनी आउटकम्स, दैट्स इट। 8 आउटकम्स कैसे आए, आई विल शो यू दिस वे। अगर a coin is tossed 1 time HT 2 भी आएगा, a coin is tossed 2 times तो पहली बार में HT, सेकंड टाइम HT, तो HT क्रॉस HT तो पहले 4 आउटकम 2 into 2। a coin is tossed 4 times HT क्रॉस HT क्रॉस HT क्रॉस HT तो ये 4 आएगा और अगर दूसरे 4 आएगा, मतलब तो 16 आउटकम। समझ में आ गया? ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 given 5 flags of different color, 5 flags of different color are given, 5 flags of different colors, 5 flags of different colors are given, ठीक है। फिर how many different signals can be generated if each signal requires use of 2 flags, one below the other? 2 flag signal to be made, 2 flag signal to be made, मतलब a signal of 2 flags is to be made। और हाँ, सिग्नल में 1 फ्लैग अबाउट 1 फ्लैग बिलो दी अदर हमको फिल करना है, मतलब एक फ्लैग के नीचे दूसरा फ्लैग लगा के एक सिग्नल फॉर्म करना है। और यहाँ पे 5 फ्लैग्स और डिफरेंट कलर है, तो ऑब्वियसली नो रेपिटेशन होगा। अब वो जो सिग्नल है जो वी वांट टू फॉर्म इज अ 2 फ्लैग सिग्नल। द सिग्नल व्हिच हैज टू बी मेड इज अ 2 flag signal, the signal which is to be made is a 2 flag signal। तो मैं इधर से करता हूं, ओके। अब आप देखो ये जो 2 flag signal है तो the topmost position can be filled in how many ways? कोई भी 5 में से 1 so 5 ways can be filled in 5 ways। यहाँ पे जो फ्लैग आया, सपोज यहाँ पे ब्लैक कलर का है, या यहाँ पे व्हाइट, यहाँ पे ब्लैक कलर का है, ग्रीन कलर का या रेड कलर, ओके सपोज यहाँ पे रेड कलर का फ्लैग है, तो यहाँ पे जो कलर का फ्लैग आया तो यहाँ पे नहीं आ सकता, ऑब्वियसली नो रेपिटेशन है क्योंकि 5 फ्लैग्स और डिफरेंट कलर के, तो जो फ्लैग यहाँ पे आया तो यहाँ पे नहीं आ सकता। सो दिस प्लेस या दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? 4 ways। सिंपल, नो रेपिटेशन होगा ऑब्वियसली बिकॉज़ 5 फ्लैग्स और डिफरेंट कलर है। सो टोटल नंबर ऑफ signal form 2
फ्लैग, सिग्नल्स, मेन, कितने होंगे? सिग्नल कब बनेगा? जब टॉप मोस्ट पोजीशन फील्ड एंड बॉटम मोस्ट पोजीशन फील्ड. सो नंबर ऑफ वेज टू फिल द टॉप पोजीशन इज 5 into number of ways of filling the second position which is 4. कितना है? 20. खाली को by FBC. By FBC answer is 20. Yes, this we have done. For the tossing point 3 times will be 8 आ गया आंसर 336. Yes, answer is perfect. तो आप देखो एक्सरसाइज ओवर, इतनी ही है छोटी सी एक्सरसाइज, ज्यादा कुछ टफ नहीं था, ज्यादा कुछ टफ नहीं था. मैंने आपको कहा था कि एक्सरसाइज उतनी टफ नहीं है. ठीक है, 10 हो गए. लेट मी जस्ट नोट. Okay, now what I will do, 4 एग्जाम्पल हैं, तो लेट मी डू दोस 4 एग्जाम्पल्स, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा. एग्जाम्पल 1, क्या लिखा है? फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग. 4 लेटर वर्ड, 4 लेटर वर्ड, 4 लेटर वर्ड टू बी 4 लेटर वर्ड्स to be made, okay, with or without meaning, from the letters of the word rose. So letters to be used, letters to be used, letters of the word ROSE to be used. Okay, now so आप ऐसा याद रख सकते हो कि letters, 4 letters to be used. ऐसा लिखो, letters of rose to be used लिखो, उससे ऐसा लिखो 4. अरे letters to be used कौन से? letters to be used ROSE. ओके, और हाँ, वर्ड का मीनिंग हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है. पहले केस में है, एग्जाम्पल में दिया है रेपिटेशन इज नॉट अलाउड. ओके, फर्स्ट केस में रखता हूं रेपिटेशन, repetition is not allowed. Okay, now it's a very simple thing. 4 letter word में first place, second place, third place, fourth place. समझ में आया कि नहीं? अब 4 letter word to be made with or without meaning, no problem. Letters to be used ROSE. Repetition not allowed. So और कोई restriction नहीं है. तो first place can be filled by R or O or S or E. First place can be filled in 4 ways. ठीक है, यहाँ पे जो लेटर आया तो यहाँ पे नहीं आ सकता, तो सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 ways. अब फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस पे जो लेटर आ चुका है वो थर्ड प्लेस पे नहीं आ सकता, तो थर्ड प्लेस के लिए 2 लेटर्स ही हैं, सो दैट कैन बी फिल्ड इन 2 ways. अब 3 लेटर्स यूज हो चुके हैं, एक फर्स्ट प्लेस पे यूज हो चुका है, एक सेकंड प्लेस पे यूज हो चुका है, एक थर्ड प्लेस पे यूज हो चुका है, तो फोर्थ प्लेस के लिए एक ही लेटर अवेलेबल है, तो फोर्थ प्लेस कैन बी फिल्ड इन 1 way. So finally the answer is total number of without repetition, मतलब इस हेडिंग में, so total 4 letter words, total 4 letter words made is equal to, obviously when no repetition is allowed, 4 into 3 into 2 into 1, कितना आएगा आंसर? 4 3 12 12 24. Obviously this is by FPC. Okay, now suppose repetition is allowed. हाँ, उन्होंने दिया है एग्जाम्पल 1 के बाद एक नोट दिया है, तो वही चीज को मैं कैरी फॉरवर्ड करता हूँ. Repetition is allowed. Suppose repetition is allowed. So first place can be filled in how many ways? Think. Second place can be filled in how many ways? Third place can be filled in how many ways? Think. Letters to be used ROSE है, कोई और दूसरा restriction तो है नहीं. So first place can be filled in 4 ways. Each place can be filled in 4 ways. यहाँ पे R या O या S E आ सकता है. Second place पे भी R या O या S या E आ सकता है. Third place can be filled in 4 ways. Fourth place can be filled in 4 ways. तो इस केस में जब repetition is allowed, total 4 letter words form will be 4 into 4 into 4 into 4. 4 plus 60 64 256. Yes, you can see. Simple.
ठीक है, तो आई बिलीव डाउट नहीं होगा, थोड़ा और समझ में आया। सो देयरफॉर टोटल 4 लेटर वर्ड्स फॉर्म ऑब्वियसली विथ रेपिटेशन। हेडिंग लिख चुके हैं, रेपिटेशन अलाउड। फर्स्ट पेज के अंदर फिल इन 4 into 4 into 4 into 4 कितना आएगा 256। आंसर इज 256। Make it a point when you are writing in subjective portion, you must write बाजू में by FPC. Clear? Okay. Now example number 2 देखो क्या लिखा है। 4 flags of different color, signal of 2 flags to be made and a signal में 1 flag above below the color होना चाहिए। क्या करना है? 4 flags of different 2 flag signal to be made, ऐसा लिखो 2 flag signal to be made। ओके, फिर 4 flags और सिग्नल फॉर्म करने के लिए 4 flags of different colors are there। ऑब्वियसली उसका मतलब नो रेपिटेशन दिया नहीं है, they are not mentioned, पर पता कैसे चलता है नो रेपिटेशन क्यों? क्योंकि 4 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर है, मतलब एक ही कलर के कोई फ्लैग सेम कलर के फ्लैग नहीं है, और सिग्नल में एक फ्लैग के नीचे दूसरा फ्लैग रखना है, वन बिलो द अदर। ओके, तो वो सिग्नल इज 2 फ्लैग सिग्नल इज ऑफ दिस टाइप, 1 flag kept below the other। Suppose तो topmost place 2 flag signal इस टाइप का होगा, so topmost place can be filled by any one of the 4 flags, so this place can be filled in 4। यहाँ पे जो फ्लैग आ चुका है, यहाँ पे जो फ्लैग आ चुका है उस कलर का फ्लैग यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे सेकंड प्लेस को मुझे फिल करना है, उसके लिए मेरे पास 3 फ्लैग्स अवेलेबल है, तो द बॉटम प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 ways। so total 2 flag signals में कितने आएंगे? Topmost place can be filled in 4 ways and bottommost place can be filled in 3 ways। 4 3s are 12 because by FPC, because by FPC। Easy? Done? Okay। टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में 5 flag signals था, अरे 5 different colors 2 फ्लैग सिग्नल ही फॉर्म करना था, पर उसमें अवेलेबल फ्लैग्स कितने थे? 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। इसलिए उस टाइम पे आंसर था 5 into 4 20। इसका आंसर क्या है? यस, द अपर ब्रैकेट केस 4 into 3। तो एग्जांपल 3 देखो और फिर एग्जांपल 4। एग्जांपल 4 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। एग्जांपल 4 इज अ यू कैन से वेरी गुड क्वेश्चन, और उसमें आपको एफपीसी फॉर मल्टीप्लिकेशन, एफपीसी फॉर एडिशन का ख्याल आ जाएगा। जस्ट वेट फॉर 2 to 3 minutes, जिसमें मैं एग्जांपल 3 फिनिश कर दूं। हाउ मेनी 2 digit even number? ओके, वी वांट टू फॉर्म 2 digit even number, 2 digit even numbers to be made। ठीक है, digits to be used कौन से हैं? digits to be used कौन से हैं? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। फिर क्या लिखा है? digits can be repeated, so repetition allowed। ओके, अब पहले वो 2 digit नंबर का फॉर्मूला देखो। अरे 2 digit नंबर का पैटर्न क्या होता है? 2 digit नंबर इज पहले प्लेस 100 प्लेस और सेकंड प्लेस यूनिट प्लेस। 100 प्लेस पे कोई जीरो नहीं आना चाहिए, नो जीरो एट 100 प्लेस। क्यों? अगर जीरो आ गया 100 प्लेस पे तो वो नंबर 1 डिजिट नंबर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग लिखेंगे a number is even if it has any of 0 2 4 6 और 8 at unit place। ठीक है, ये आपको पता है, मतलब यूनिट प्लेस पे अगर 0 2 4 6 या 8 आएगा तो वो नंबर इवन नंबर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इधर यूनिट प्लेस को फिल करेंगे। सो 100 प्लेस है हमारे पास और यूनिट प्लेस है। ओके, यूनिट प्लेस पे
2 या 4 आ सकता है। सो यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 2 और 4 इन हाउ मेनी वेज? 2 वेज। अब 100 प्लेस के लिए क्या रेस्ट्रिक्शन है? नो जीरो एट द 100 प्लेस, नो जीरो एट द 100 प्लेस। डिजिट टू बी यूज में जीरो है ही नहीं। और दूसरा रेपिटेशन अलाउड है। उसका मतलब अगर यहाँ पे 2 लिखा है या 4 लिखा है तो यहाँ पे भी आ सकता है। कहने का मतलब दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 1 2 3 4 और 5, सो 5 वेज। आई एम नॉट राइटिंग, ओके, 1 2 3 4 और 5। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 100 place can be filled by 1, oh, understood, 100 place can be filled in 5 ways. Unit place to be filled by 2 or 4 in 2 ways. और repetition allowed है, और digits to be used में 0 नहीं है। That's why 100 place can be filled in 5 ways by 1 2 3 or 4 or 5. So total 2 digit even numbers मेक या फॉर्म कितने होंगे? नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग 100 प्लेस इनटू नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग यूनिट प्लेस, मतलब 5 इनटू 2 कितना आएगा आंसर? 10 बाय एफपीसी, अरे ऐसे कोई क्वेश्चन? यस, आंसर इज 10। ठीक है, तो उन्होंने वही लिखा है कि यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 2 और 4 इन 2 वेज एंड 10 प्लेस कैन बी फिल्ड बाय, सॉरी मैंने गलत लिखा, 100 प्लेस में आया है, सॉरी यहाँ पे 10th प्लेस होना चाहिए, माय मिस्टेक। 10th प्लेस यूनिट प्लेस को करेक्शन कर देना, नो जीरो एट द 10th प्लेस, सॉरी नो जीरो एट द 10th प्लेस, और यहाँ पे 10th प्लेस आया, सॉरी राइट, सॉरी 2 डिजिट नंबर इज 10th प्लेस और बाद में यूनिट प्लेस, सो नो जीरो एट द 10th प्लेस। ठीक है, और जो करेक्शन लिखा, ठीक है, राइट, ओके, आंसर आ गया। 10th place can be filled by 1 2 3 or 4 or 5 in 5 ways. So total number of even digit numbers formed will be 5 into 2. Very good, right? और 2 into 5 करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। Okay. Now example number 4. That is, you can say the best question that can come for 2 or 3 marks in your school examination. Find the number of different signals that can be generated by arranging at least 2 flags in order, one below the other on a vertical staff if 5 different flags are available. Okay. 5 flags. 5 flags of different colors are available. Okay. A signal is to be made at least signals to be generated by at least 2 flags. मतलब 2 flag signal, a signal of at least 2 flags, signal of at least 2 flags must be made, okay. और दूसरा, हाँ, सिग्नल में क्या है? The flags are to be arranged one below the other on a vertical staff, वो लिख रहा हूँ। So the signals can be at least 2 flags होने चाहिए कम से कम। तो इसका मतलब उसमें 2 flags वाले सिग्नल हो सकते हैं और कम से कम 2 flags होने चाहिए या 2 से ज्यादा। सो और हमारे पास अवेलेबल flags कितने हैं? 5 flags of different color। तो signals can be 2 flag signals that can be made। Signals can be 2 flag or 3 flag signals। Signals can be 2 flag signals। Signals can be of 2 flags or 3 flags or 4 flags or 5 flags। और obviously यहाँ पे 5 flags of different colors are available, so obviously no repetition। Okay, first case क्या है? First case 2 flag signals। 2 flag signals, okay, तो 2 flag signals कैसे होगा? उसमें खाली 2 पोजीशन होगी, टॉप मोस्ट पोजीशन एंड बॉटम मोस्ट पोजीशन। टॉप मोस्ट पोजीशन और हमारे पास टोटल 5 flags of different color है, तो टॉप मोस्ट पोजीशन can be filled in 5 ways, repetition not allowed, 5 flags of different color है, तो second place can be filled in 4 ways। So therefore
टू फ्लैग सिग्नल्स मेड कितने होंगे? टू फ्लैग सिग्नल्स मेड कितने होंगे? 5 into 4 कितने? 20 by FPC. It's obvious. अब 3 फ्लैग सिग्नल्स निकालो, 4 फ्लैग सिग्नल्स निकालो, 5 फ्लैग सिग्नल्स निकालो। बराबर है। तो 2 फ्लैग सिग्नल्स वाले एक एग्जांपल में क्वेश्चन किया और एक एक्स्ट्रा में क्वेश्चन किया, और यहाँ पे तो सिग्नल ऑफ 3 फ्लैग्स भी हो सकते हैं। तो 3 फ्लैग सिग्नल्स वो कैसे होंगे? उसके अंदर 3 पोजीशंस होंगी, टॉप मोस्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन। टॉप मोस्ट पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 5 ways, उसके बाद की सेकंड पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 4 ways and the bottom most third position can be filled in 3 ways because repetition is not allowed. Therefore 3 flag signals made वो कितने आएंगे? 5 into 4 into 3 कितना आएगा? 5 4 जा 20, 23 जा 60 again by FPC. ओके, अब इसके बाद सिग्नल क्या हो सकता है? एटलीस्ट 2 फ्लैग्स उसमें होने चाहिए। तो सिग्नल कैन कंटेन 2 फ्लैग्स और 3 फ्लैग्स। अब 4 फ्लैग सिग्नल्स भी हो सकता है, 4 फ्लैग सिग्नल्स। ओके, उसके अंदर 4 पोजीशंस होंगी वर्टिकल स्टाफ से, वन बिलो द अदर। तो टॉप मोस्ट पोजीशन कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? 4। ओके, टॉप मोस्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। उसके बाद दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, 2 वेज, सॉरी गलत लिखा है, 5 फ्लैग्स हैं, 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। तो टॉप मोस्ट पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 5, फिर सेकंड पोजीशन कैन बी फिल्ड इन उसके नीचे का 4 वेज, फिर उसके नीचे का 3 वेज और द बॉटम मोस्ट कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। सो 4 फ्लैग सिग्नल्स, 4 फ्लैग सिग्नल्स, 4 फ्लैग सिग्नल्स, therefore 4 फ्लैग सिग्नल्स में कितने बनेंगे? 5 into 4 into 3 into 2 कितना आएगा? 5 into 4 into 3 into 2 by FPC कितना आएगा? 5 होगा 20, 20 into 6 120। तो ये याद रखने का 3 फ्लैग सिग्नल 60 है, 4 फ्लैग सिग्नल्स 120 है और 2 फ्लैग सिग्नल्स 20 है। ये याद रखने का 5 into 4 20, 23 is 60 और 62 is 120। अब टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स कितने हैं? 5 फ्लैग सिग्नल भी बन सकता है। तो क्या लिखोगे? 5 फ्लैग सिग्नल्स कितने बन सकते हैं? उसके लिए सिग्नल का टाइप, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस और फिफ्थ प्लेस। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 ways। फिर उसके नीचे यहाँ पे जो फ्लैग आ चुका है उस कलर का फ्लैग यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि 5 फ्लैग्स और डिफरेंट कलर है। सो सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 ways, थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 ways बिकॉज़ रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। ऑब्वियसली लिखा नहीं है, पता कैसे चला? 5 फ्लैग्स और डिफरेंट कलर्स है और बॉटम मोस्ट पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 1 way। सो 5 फ्लैग सिग्नल्स, देयरफॉर 5 फ्लैग सिग्नल्स मेड कितने बने? टॉप मोस्ट पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 5, फिर 4 into 3 into 2 into 1 by FPC। सो कितने बनेंगे? 5 4 20, 26 20 into 6 23 60, 120, 120 into 1 is 120। तो 5 फ्लैग सिग्नल्स में कितने बनेंगे? 120। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स फॉर्म यहाँ पे किसी भी एक सिग्नल में आप देखो, यहाँ पे ये 5 फ्लैग सिग्नल कब बनेगा? जब फर्स्ट प्लेस फील्ड एंड सेकंड प्लेस फील्ड एंड थर्ड प्लेस फील्ड एंड फोर्थ प्लेस फील्ड एंड फिफ्थ प्लेस फील्ड। इसलिए यहाँ मैंने FPC फॉर मल्टीप्लिकेशन लगाया। अब टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स फॉर्म वो देखो मैं कैसे करता हूँ। टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स फॉर्म, टोटल सिग्नल्स फॉर्म, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स मेड। अब वो सिग्नल मेड वो क्या हो सकता है? 2 फ्लैग सिग्नल और 3 फ्लैग सिग्नल और 4 फ्लैग सिग्नल और 5 फ्लैग सिग्नल। तो कैसे? नंबर ऑफ
2 फ्लैग सिग्नल्स, और आया इसके लिए प्लस नंबर ऑफ 3 फ्लैग सिग्नल्स, फिर वो सिग्नल फॉर्म कैन बी अ 4 फ्लैग सिग्नल प्लस नंबर ऑफ 4 फ्लैग सिग्नल्स प्लस नंबर ऑफ 5 फ्लैग सिग्नल्स। इधर मैंने प्लस क्यों किया? क्योंकि सिग्नल फॉर्म कैन बी अ 2 फ्लैग सिग्नल और अ 3 फ्लैग सिग्नल और अ 4 फ्लैग सिग्नल और 5 फ्लैग सिग्नल। जब भी और आए तो प्लस करने का, एंड आए तो मल्टीप्लाई करने का, और जब एंड आए FPC फॉर मल्टीप्लिकेशन यूज करने का, और आए तो FPC फॉर एडिशन यूज करने का। प्लस नंबर ऑफ 4 फ्लैग signals plus number of 5 flag signals. Okay, 2 flag signals कितने थे? 5 into 4 20 plus 5 4 3 520 60 आएगा, plus 5 into 4 20 20 60 60 into 2 120 plus 120 into 1 कितना आएगा? 120. So 120 plus 120 is 240. 240 plus 60 is 300. Answer must be 320. और हाँ, यहाँ पे हमने क्या लगाया? By FPC. By FPC of addition. By FPC of addition. देखो वही किया है. Therefore required number of signals is 20 plus 60 plus 120 plus 120. समझ गए? Easy. So that finishes. You can say exercise 7.1 और सारे एग्जांपल्स इसके बेस पे। तो पहली एक्सरसाइज जो अभी मैंने आपको सिखाया उसमें कौन सा कंसेप्ट यूज किया गया है? उसमें कंसेप्ट यूज किया गया है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फॉर मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फॉर एडिशन। जब भी और आएगा तो एडिशन करने का और अप्लाई करने का FPC फॉर एडिशन, और जब भी एंड आए तो मल्टीप्लिकेशन करने का और अप्लाई करने का फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फॉर मल्टीप्लिकेशन। जस्ट 1 minute, let me see. Let me have some water. 1 minute only. Okay, so that finishes the first exercise. और उसके रिलेटेड एग्जांपल्स। ओके, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट एक्सरसाइज, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक छोटा सा एक टॉपिक है फैक्टोरियल का। तो लेट अस डू वो छोटा सा टॉपिक जो है वो मैं पहले कर देता हूं। और हाँ, हाल मैं आपको बता देता हूं, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस होता है। तो परम्यूटेशंस का मतलब, permutations mean arrangements, permutation means arrangement, और combination का मतलब selection होता है, और combination means selection। ठीक है? ओके, permutation का मतलब arrangement, combination का मतलब selection। ओके, now factorial notation, factorial notation। okay, what is factorial notation? factorial के बारे में हमको काम करना है। ओके, इसको हम पढ़ेंगे n factorial। ओके, n factorial को डिनोट करने का ये एक पैटर्न है। जस्ट 1 मिनट, लेट्स यू मैसेज दिया है ना? यस, ओके, factorial is denoted by n factorial। तो फैक्टोरियल नोटेशन, इसको हम पढ़ते हैं n फैक्टोरियल, इसको हम पढ़ते हैं n फैक्टोरियल। और n फैक्टोरियल का डेफिनेशन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। और हाँ, उसमें n एक प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ओके, तो उस लॉजिक से n फैक्टोरियल प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो उसको हम कैसे लेंगे? 1 into 2 into 3, कहां तक जाना चाहिए? n तक जाना चाहिए। तो 1 into 2 into 3 till n minus 2 into n minus 1 into n। उल्टा भी लिख सकते हैं n फैक्टोरियल को। n फैक्टोरियल कैन आल्सो बी रिटन एज n into n minus, और अब रिवर्स कर दिया मैंने ऑर्डर, n into n minus 1 into n minus 2 till 3 into 2 into 1। समझ आया?
n फैक्टोरियल का नोटेशन है ये। n फैक्टोरियल मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। बाय डेफिनेशन n फैक्टोरियल मतलब 1 into 2 into 3 कहां तक जाने का, n तक। रिवर्स कर दिया मैंने ऑर्डर, सो n into n minus 1 into n minus 2 till 3 into 2 into 1। ओके, सपोज मुझे 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल वो सब निकालना है तो कैसे करेंगे? 1 factorial, what is 1 factorial? Product of first one natural number। Therefore 1 factorial का मतलब product of first one natural number मतलब 1, simple। 2 factorial का मतलब क्या? Product of first two natural numbers मतलब 1 से शुरू करके 2 तक जाने का, 1 into 2 आंसर आएगा 2। ओके, 3 factorial क्या है? 3 factorial product of first three natural numbers 1 into 2 into 3 कितना आएगा 6। ओके, 4 factorial 5 factorial 6 factorial निकालो। 4 factorial मतलब क्या है? product of first four natural numbers 1 into 2 into 3 into 4 कितना आएगा 1 into 2 2 into 3 6 24। therefore 5 factorial कितना आएगा? product of first five natural numbers 1 into 2 into 3 into 4 into 5। so 5 factorial कितना है? 1 into 2 2 2 3 6 6 4 24 24 5 120 and so on। 6 factorial आप समझ गए, 7 factorial समझ गए वेरी इजीली ना, इतना आपको समझ में आ गया इजीली, आई होप डाउट नहीं। फिर आपको याद रखना है 6 factorial या 7 factorial नंबर्स के पीछे नहीं जाना, आपको याद रखना है इसका नोट करके याद रखना है 0 factorial is 1 0 factorial is 1 याद रखने का क्या, that is 0 factorial is 1 तीन बार लिख देने का 0 factorial is 1 0 factorial is 1। ओके, याद रहेगा 0 factorial is 1। अब देखिए consider 10 factorial। what is 10 factorial? 10 factorial is product of 10 factorial is product of first 10 natural numbers। so can I write 1 into 6 factorial मैं उसको फोकस करता हूं। what is 6 factorial? product of first 6 natural numbers। मुझे नंबर में इंटरेस्ट नहीं है, 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 को डाल तो 6 factorial can I write as खाली ऑर्डर रिवर्स करो 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 को डाल। अब 6 factorial अगर मैं सोचूं 6 into ये पूरा प्रोडक्ट 1 ये पूरा प्रोडक्ट 5 into 4 into 3 into 2 into 1 ये क्या है? 5 into 4 into 3 into 2 into 1 वो क्या है? वो है 1 into 2 into 3 into 4 into 5 वो 5 factorial है। 6 factorial I can write as 6 into 5 factorial, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमिलरली 6 factorial को मैं लिख सकता हूं अगर मैं लिखूं 6 into 5 अगर मैं लिखूं 6 into 5 तो मतलब 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 में से मैं खाली 6 into 5 लिख रहा हूं तो क्या बच गया? 4 into 3 into 2 into 1 4 into 3 into 2 into 1 वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फोर नेचुरल नंबर्स वो क्या हो जाएगा? 4 factorial। so I can write as 6 factorial को मैं लिख सकता हूं 6 into 5 into 4 factorial। सिमिलरली 6 factorial को क्या लिख सकते हैं? 6 into 5 into सिमिलरली 6 factorial को क्या लिख सकते हैं? 6 into 5 into 4 into ओके 6 into 5 into 4 into क्या रहेगा? 1 into 2 into 3 product of first three natural numbers that is 3 factorial and so on। I hope I am clear? Yes or no? ओके, तो अब अगर कोई बड़ा सा नंबर हो कोई एक बड़ा सा नंबर हो जैसे कि 100 factorial या 10 factorial ओके 100 और कैलकुलेट कर लिए आप 10 factorial is 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9 into 10 तो 10 factorial can be written as 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। अब आपको पता है ये जो मैंने आपको सिखाया उस लॉजिक से 10 factorial as per the requirement of the question I can write as 10 into ये पूरा क्या कितना आएगा 10 into 9 factorial। I can also write 10 factorial as
ओके, इक्वल टू मैं इधर लिख देता हूं, इज इक्वल टू 10 इंटू, कैसे लिख सकता हूं, 10 इंटू 9 इंटू कितना, 1 से लेके 8 तक, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। आई कैन ऑल्सो राइट 10 फैक्टोरियल एज 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू कितना आएगा, 7 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल को लिखने के अलग अलग तरीके हैं, है ना, एंड सो ऑन। You can also write 10 factorial as, you can also write 10 factorial as 10 into 9 into 8 into 7 into 6 factorial. 10 factorial can also be written as 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 factorial as per the requirement. I hope आपको समझ में आ गया, उतना टफ नहीं है। इसका एक जनरल लॉजिक एंड फैक्टोरियल का जो डेफिनेशन है उसके साथ कनेक्ट करके आई विल एंड बाय डेफिनेशन। एन फैक्टोरियल क्या था, एन फैक्टोरियल क्या था, 1 into 2 into 3 till n minus 2 into n minus 1 into n। तो n फैक्टोरियल को आप कैसे लिख सकते हो, उल्टा कर दो ऑर्डर, n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 till 3 into 2 into 1। तो n factorial can be thought of as n into, ये पूरा प्रोडक्ट क्या है, ये अगर मैं खाली n लिखता हूं 1 से लेके n minus 1, व्हाट इज 1 से लेके n minus 1, वो हो जाएगा n minus 1 factorial। so n factorial can be written as n into n minus 1 factorial as per the requirement। फिर n factorial को आगे और लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल अगर मैं लिखूं n into n minus 1 तो क्या रह गया, कौन सा प्रोडक्ट रह गया, n into n minus 1 लिखा, so 1 into 2 into 3 से लेके n minus 2 रह गया, वो है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n minus 2 नेचुरल नंबर। तो ये कितना हो जाएगा, n into n minus 1 into क्या आएगा, n minus 2 फैक्टोरियल। n factorial can also be thought of as n into n minus 1 into n minus 2 into क्या है, n into n minus 1 n into n minus 1 into n minus 2, और ये पूरा प्रोडक्ट रह गया। तो ये क्या है, 1 into 2 into 3 till n minus 3, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n minus 3 नेचुरल नंबर। so that can be written as n minus 3 factorial and so on। yes or no? इसी चीज को आप k के साथ कनेक्ट कर सकते हो, k फैक्टोरियल, आप k फैक्टोरियल के साथ कनेक्ट कर सकते हो। सिमिलरली k फैक्टोरियल क्या होगा, 1 into 2 प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट k नेचुरल नंबर्स। यस और नो? तो इसको कैसे लिख सकते हैं, k फैक्टोरियल कैन बी थॉट ऑफ एज k into k minus 1 into k minus 2 till 3 into 2 into 1। ठीक है, तो अब n की जगह पे खाली k है, तो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, k फैक्टोरियल इज k into k minus 1 फैक्टोरियल। यू कैन आल्सो राइट दैट इज k into k minus 1 into k minus 2 फैक्टोरियल। so I hope I am clear and this topic will be very clear, क्योंकि मैंने पहले 6 फैक्टोरियल से एग्जांपल लिया, 10 फैक्टोरियल से समझा दिया और n फैक्टोरियल और k फैक्टोरियल से भी आपको समझा दिया है। सो आई बिलीव इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। फैक्टोरियल नोटेशन क्या है और उसका छोटा सा एप्लीकेशन क्या करना है वो मैंने आपको सिखा दिया। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।